So if we have to find x intercept, so we will put y0, and if we have to put we have to find y intercept, then we have to put x is equal to 0. So obviously we will get quadratic equation. Quadratic equation के दो roots होते हैं, right? So we will get two intercept, one on the left of the axis, other on the right hand side of the axis. But is it clear? Right, all of you? So if you see, there is one question. So right, these type of questions are there in the first exercise. So find the equation of the circle which passes through the point. So there are two parts. Let me do any one of the part. So let us do the second part. Find the equation of the circle which passes through the point AB. So we have to find the equation of the circle which passes through AB, A minus B, and A plus B, A minus B. Is it fine? So हमने क्या करना है, अगर आप देखो, so we know what is the equation of circle. So what is the equation of circle? General equation. Equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. तो अगर आप देखो इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट्स हैं, कितने अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू मुझे नहीं पता. सो वन इज g, वन इज f एंड वन इज c. तो हमें पता है मैथमेटिक्स में इफ देयर इज वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आई नो वन, आई नीड वन कंडीशन. तो अगर आप देखो यहाँ पे थ्री चीजें मुझे निकालनी है. ऊपर देखो आपको 3 पॉइंट्स गिवन है जो इस सर्कल पे से लाइन पास करते हैं, जिनसे सर्कल पास करता है. तो हमें पता है कि अगर सर्कल इन पॉइंट से पास करेगा तो ये वाले पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो दैट्स इट, राइट? सो सिंस AB satisfies 1, let me call the equation of circle as 1. So therefore what will happen? It will, right, so a square, x की जगह a square, y की जगह b square plus 2ga plus 2fb plus c is equal to. Is it fine? x की जगह a पुट कर दिया, y की जगह b पुट कर दिया. सिमिलरली अगर आप x की जगह a पुट कर दोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर, और y की जगह माइनस b पुट कर देंगे तो पहली टर्म तो b स्क्वायर ही रहेगी बिकॉज स्क्वायर हो रहा है. तो माइनस b का स्क्वायर विल बी b स्क्वायर. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2ga minus 2fb plus c is equal to 0. So this is using a minus. Clear, right? So this, let me call above equation as equation number 2. This is equation number 3. And lastly, a plus b का होल स्क्वायर, x की जगह a plus b पुट कर दिया, y की जगह a minus b plus 2g a plus b minus 2f, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा. पहले माइनस इसलिए लिखा था बिकॉज b नेगेटिव था. यस, प्लस c is equal to 0. So now if you see, there are 3 equations, equation number 2, equation number 3, equation number 4. So we will use these equations, right, to find the value of f, g and c, right? So पहले हम equation number 4 को simplify कर लेते हैं. So if you see a square, दो a square आ जाएंगे. So 2a square, फिर b square, 2b square. पहली वाली टर्म से प्लस 2ab आ जाएगा, सेकेंड वाली टर्म से माइनस 2ab हो गया, कैंसिल हो जाएगी, राइट? एंड देन यू विल हैव 2ga प्लस 2gb प्लस 2fa माइनस 2fb प्लस c is equal to. बेटा क्लियर है? So now if you see, there are lot many ways by which you can do this. हमने वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है. तो अगर आप देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दूं, लेट मी सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. So equation number 2 minus equation number 3.
सो व्हाट विल हैपन, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2GA कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या है, ऊपर 2FB, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2FB, और वैसे CC कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, दिस इज 0. तो यहां से क्या आ गया, 4FB इज इक्वल टू 0. अब देखो प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स इज 0, इसका मतलब एक नंबर 0 होगा. 4 कैन नॉट बी 0, B cannot be 0. B is 0 because AB is a point. So obviously B is some non-zero number. So only possibility क्या हुई? F is equal to. So this implies F is. एक constant तो हमें मिल गया. So F is equal to 0. So let us put. So using F is equal to 0. In जो equations अब हमने use नहीं करी है in second and fifth equation. तो जैसे आप सेकंड में F0 करोगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AG प्लस C इज इक्वल टू 0. और फिफ्थ इक्वेशन में अगर आप डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2AG प्लस 2GB प्लस C इज इक्वल टू 0. बेटा क्लियर है, कोई डाउट है बेटा? लेट मी नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 6. आप और भी इक्वेशंस यूज कर सकते थे, मैंने ये इक्वेशंस यूज करी है, यू कैन यूज एनी इक्वेशन. सो अब ये A और B आपके कांस्टेंट्स हैं, आपको A और B को ऐसे ही रखना है, आपको F, G और C की वैल्यू निकालनी है, बस दैट्स इट. सो अगर आप देखो अगेन आई विल सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 7. तो क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना हो गया, A स्क्वायर. 2B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना हो गया, B स्क्वायर. देन इफ यू सी 2AG विल कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2GB. अगेन CC विल कैंसिल. बेटा क्लियर है? तो यहां से G की वैल्यू कितनी आ गई, तो लेट मी टेक A स्क्वायर एंड B स्क्वायर ऑन वन साइड, सो माइनस साइन आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2, राइट. अब लास्ट वैल्यू किसकी रह गई, so what I can use equation number 6 because 6 में सिर्फ G आ रहा है. So from equation number 6 what do you get, A square plus B square plus 2AG की वैल्यू कितनी आई है, माइनस A square plus B square over 2B plus C is equal to. So 2 will cancel. तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई, so, अगर आप उस तरफ ले जाओ तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B. इज इट क्लियर, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. If you want to take the LCM, you can take the LCM. So this is A square plus B square minus A square B minus B cube over. Better clear? Therefore, what is the circle? So what is the circle? So therefore, the circle is x square plus y square plus 2G. G की वैल्यू कितनी थी, minus A square plus B square over 2B. So 2GX plus 2FY. F कितना था, 0. F तो आएगा नहीं, प्लस C. C कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B. क्या गलती करी बेटा मैंने, हाँ सॉरी यस. तो G के साथ प्लीज A आ जाएगा, थैंक यू बेटा. सो G के साथ A आ जाएगा. नीचे, अच्छा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो ठीक है. नहीं, 6th इक्वेशन में जब मैंने G के हाँ साथ में A आ जाए, तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो बेटा A लिखा तो है मैंने, अच्छा जब मैं उधर लेके गई हूँ तब नहीं मैंने लिखा, है ना. यहाँ पे C के साथ A आ जाए.
Is it fine, beta? All of you, right? All right. So I think first part you can do yourself. वहाँ पे A B नहीं है, वहाँ पे 1 numbers है. So you'll get 3 equations. You can simplify the equations and you can get the values of the constants. So you can try this part of your own, right? In case if you get any doubt, right? Okay, there is one more question. ABCD is a square. ABCD is a square whose sides is taking AB and AD as axis. So ABCD is one square. So this is AB. So AB is one axis and AD is another axis. So this is C. So obviously say AB is x-axis and say AD is y-axis. Is it fine? So AD is a square whose side is taking AB and AD as axis. Find the equation of the circle circumscribing the square. So first exercise में ऐसे ही क्वेश्चंस है, डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है एंड आपको सर्कल की क्वेश्चंस निकालनी. तो बेटा हमेशा याद रखो सर्कल के निकालने के लिए या तो आपको 3 कंडीशंस चाहिए, बिकॉज अगर 3 कंडीशंस मिल जाएंगी तो 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आपको सीधा सीधा सेंटर और रेडियस मिल जाएगा. इज इट क्लियर? राइट. सो इफ यू सी नाउ हियर, सो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या हुआ? So वो basically वो vertices को touch करें. So the circle, all these vertices. This is one vertex. This is another vertex. Is it fine? So let us assume that the each side of the circle is A, as this what do you call it as square is A. तो हमें पता है कि A is origin, तो A will be 0 0, right? What will be B? B is a point on x-axis. A comma 0, A comma 0, y 0 हो जाएगा. B is the point on y-axis. हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो all these distance will be A, right? So this will be how much? 0 comma A. And what about the point C? So ये डिस्टेंस भी A है और नीचे वाला BC डिस्टेंस भी A है, तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल बी. तो आपको क्या मिल गया? राइट, 4 पॉइंट्स मिल गए, बट आपको कितने पॉइंट्स चाहिए थे? 3 पॉइंट्स से आपका काम हो जाएगा. सो यू कैन यूज एनी 3 पॉइंट्स एंड यू कैन फाइंड. इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू? अच्छा, सो वन मोर थिंग प्लीज. यस, अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, अगर आप AC को ज्वाइन करो तो आपको क्या मिलेगा? इफ यू ज्वाइन AC, व्हाट विल बी AC? AC is nothing but the diameter of the circle. आपको एंड पॉइंट्स ऑफ A और C पता है? व्हाट इज A? A is 0 0 and what is C? A. तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई, राइट? सो सिंस AC is diameter, so what is equation of circle? X minus, so you see first point, this is say x1, this is say y1, just for your reference, this is x2, this is y2, right? So what do you get? Battery network. इधर आ जाओ ना, you can sit on this side. आ जाओ अगर आप दोनों के पास नहीं है. Diameter x minus x1, so x1 कितना है? 0 into x minus x2, x2 कितना है? A, plus y minus y1, y minus y is equal to. So you can just open this equation. So x minus 0 is x. तो अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? x square minus ax plus y square minus ay is equal to.
Okay, so find the equation of the circle. So always in these kind of questions, it's better to focus on the geometry. अगर geometrically आपको चीजें दिख गई तो क्वेश्चन डन है. Find the equation of the circle which passes through the origin. तो इसका मतलब एक पॉइंट मुझे मिल गया. So my circle passes through origin and cuts off intersect equal to 3 and 4 from the axis. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो सर्कल पास करता है 0 0 से और x एक्सिस पे इंटरसेक्ट बनाता है 3 0 और उधर कौन सा बनाएगा 0 4. तो सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स. मिल गया. सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी. यस. So you can solve this and just check your answers from here. So next question. Find the equation of the circle of radius A. So now radius of the circle is given. Radius of the circle is given. Find the equation of the circle of radius A which passes through 2 points on the axis of x. So x axis के 2 points से pass करता है which are at a distance of b from the origin. तो ऑब्वियसली वो कह रहा है दोनों पॉइंट्स डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन है. तो एक चीज क्लियर है कि एक पॉइंट इधर होगा और एक पॉइंट एक्सिस के इधर होगा. सो क्या होगा? व्हाट विल बी द पॉइंट? सो यू सी, सो दिस विल बी, से द पॉइंट इज, वन पॉइंट विल बी b, 0 और सेकंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा? -b, 0. तो 2 पॉइंट्स मिल गए आपको, b, 0 एंड -b, 0. और तीसरा आपको सर्कल का रेडियस गिवन है. सो जब भी ऐसा केस हो, जब आपको सर्कल का रेडियस ऑलरेडी गिवन है, सो व्हाट यू विल डू? लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस h का होल स्क्वायर, यस, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. रेडियस कितना है? a. तो अब इस केस में यहाँ पे कितने अननोन्स हैं? 2. a तो गिवन है, so 2 unknowns are there. One unknown is h and one unknown is a. 2 कंडीशंस चाहिए. तो हमें पता है सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट -b0 एंड +b0. 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, h और k की वैल्यू निकल जाएगी. निकल जाएगी बेटा. अगर सपोज बाय चांस आपको यहाँ स्ट्राइक ना करता और आप सर्कल की इक्वेशन लेते वही स्टैंडर्ड वाली, तो आप वही इक्वेशन लेते x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0. तो अब यहाँ पे क्या है? कितने अननोन्स हैं? 3 अननोन्स हैं, f, g एंड c. 2 कंडीशंस तो आपको मिल गई. कौन सी कंडीशन? सर्कल पासेस थ्रू b0 एंड सर्कल पासेस थ्रू -b0. थर्ड कंडीशन के लिए क्या यूज करोगे? ओरिजिन. क्यों? सर्कल डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, इट इज नॉट गिवन. सर्कल डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन. और दूसरा, प्लीज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द ज्योमेट्री. अगर आप देखो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है +b0 -b0, तो यहाँ से एक इम्प्लीकेशन मिल रही है कि रेडियस इज b, बट दिस इज रॉन्ग. दिस कैन बी दिस सिचुएशन ऑल्सो. सर्कल कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज -b, दिस इज +b. तो रेडियस b नहीं है, रेडियस इज a, इट इज गिवन. तो अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज करोगे? थर्ड. तीसरी कंडीशन भी चाहिए ना आपको. 3 इक्वेशंस हो गई. अब तीसरी कंडीशन कौन सा, क्या गिवन है? यस, so radius is given to you in this question. So we know what is the formula for radius. r क्या होता है? √of g² + f² - c. So in this question r is given. r कितना गिवन है? a. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो a² कितना हो जाएगा? g² + f² - c. तीसरी कंडीशन आपकी ये बन जाएगी. तो बट इफ यू सी यहाँ पे f² g² इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. सो दैट इज द रीजन, इफ पॉसिबल ट्राई दिस इक्वेशन, बिकॉज इसमें अब आपके 2 ही अननोन्स हैं, h और k. a is known to be. बेटा हो जाएगा ये क्वेश्चन, राइट? So if you see next question is also the same. Find the equation of the circle which passes through 0 0 3 0 0 4, right?
So no need to try every question. You can randomly pick up the questions and try, right? All right. Yeah, these questions I was talking. So ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन है. Let me randomly do one of the question. Find the equation of the circle which touches each axis at a distance 5 from the origin. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? तो पहले ज्योमेट्री बनाओ. तो what he is saying is, this is my axis, this is my x-axis, this is y-axis, this is origin. So say this is 5 here and say this is 5 here. So you have to find the equation of the circle which touches your axis something of this sort. तो हमें पता है. So let me take this as center. अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं दोनों को नीचे, is it fine? Can you tell me what is the radius of the circle? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेके अगर आप नीचे टच करते हो तो वो रेडियस के इक्वल होता है. तो क्लियरली लेट मी से दिस इज ए, दिस इज बी. सो व्हाट इज OA? OA is nothing but radius, that is 5. What is the center of the circle? डायरेक्टली आपको सेंटर भी पता चल रहा है. O is nothing but 5,5 because वर्टिकल डिस्टेंस देखो ना बेटा, ये OA, ये डिस्टेंस भी 5 है और ये डिस्टेंस भी 5 है. O इसके O के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? अच्छा ये O नहीं लो, सेंटर C ले लो. O ऑलरेडी हमने ओरिजिन को लिया. बेटा क्लियर है? ऑलरेडी आपको सर्कल का रेडियस भी पता लग गया, सर्कल का सेंटर भी पता लग गया. Otherwise in this question 2 points are given. What are the points from which circle passes? 0, 5 and 5, 0. और दूसरा radius of circle is how much? 5. So you can use these conditions to solve this. और अगर ज्योमेट्री से क्लिक कर गया तो this is just one line question. Is it clear, all of you? Yes. So again, if you see, there is one more question. Find the equation of the circle which touches the axis. Find the equation of the circle which touches the axis and passes through the point -2, -3. इसका क्या मतलब हुआ? Right. So if you see here geometrically the same पिछली वाली सिचुएशन आ गई. अब यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं गिवन. यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमें लिखा था कि वो 5 पे टच कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? से दिस इज दिस, राइट? एंड से द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस. सो हमें पता है दिस इज माय सेंटर. तो अगर मैं इस पॉइंट को भी ज्वाइन करूं से A और इधर से इस पॉइंट को भी ज्वाइन करूं तो बोथ CA एंड CB दे आर इक्वल टू रेडियस. इज इट क्लियर? बट यहाँ पे रेडियस इज नॉट गिवन टू मी, राइट? सो यू सी व्हाट वी गेट. सो CA is also R, CB is also R. So what will be the center? R comma R. So center is R comma R. So therefore, what is the equation of circle?
What is the equation of the circle? So x minus r का whole square plus y minus r का whole square is equal to r square. Is it clear? Right? So now अब मुझे क्या चाहिए? R की वैल्यू चाहिए. So what is only one variable is there. So we know circle passes through -2 and -3. R तो आपने खुद से assume किया है ना. R is not given to me. So -2 -3 से सर्कल पास करता है तो it means क्या हो जाएगा? X की जगह I'll put -2. So -2 minus R का whole square plus y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 minus R का whole square. This is equal to R square. So let us quickly open this. minus sign तो खत्म ही हो जाएगा. So 4 plus R square plus 4R. इधर क्या आ जाएगा? 9 plus R square plus 6R is equal to R square. Clear बच्चे, all of you? Right? So what happened? R square cancel. So R square plus 10R plus 13 is equal to 0. All of you? So from here, what is the value of R? कौन से numbers है जिनका product 13 है और difference 10 है? 10 and 3, right? No. Exactly factors नहीं मिलेंगे. So can you quickly solve this question? So हो जाएगा यहाँ से solve, right? Okay. So please, one thing is very important.